Next, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 10 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Answer: diameter of the circular track 200 meter, which is given in this question. From this you can calculate radius, that is, this is the radius, which is diameter divided by 2, it is 100 meter. Here we have been given in this question that the time taken by the athlete to complete one round is 40 seconds. Total time athlete moves is 2 minutes 20 seconds. We will convert it into seconds, which comes is equal to 140 seconds. We know that the distance covered by the athlete in 40 seconds is equal to one round, and one round is equal to one circumference of the circle, that is equal to 2 pi r. Here we know the value of r, we will apply it, and the distance covered in 40 seconds is equal to 200 pi meter. Now we will calculate the distance covered in 140 seconds, which comes is equal to 2200 meter. Note that the distance and the displacement are two different terms that appear to be identical but have different meanings. Distance is the length of the path that the object travels, whereas displacement is the shortest length between an object's starting and ending point. Displacement also tells us the direction. It is given that the athlete takes 40 seconds to cover one round and he has run for 140 seconds. So the rounds completed in 40 seconds is 1. That is, if it starts from point A, travels to point B and again comes to point A, it takes him 40 seconds. That is, he completes one round in 40 seconds. We will find out how much rounds he travels in 140 seconds, which is equal to 3.5. For each completed round, the displacement is 0. That is, when he travels from point A to point B and again to point A, one round is complete, the displacement is 0. After 3 complete rounds, displacement is 0. The net displacement of the athletes is in 20 seconds only, because in 120 seconds he has traveled 3 rounds. He has completed 3 rounds of the circle, and only the displacement is only for the 20 seconds. In this 20 seconds, he will move only from point A to point B. That is, he moves at the opposite end of its initial position. Initial position is A and the last position will be point B. Therefore, if he started from point A, after 140 seconds, he will be point at B. Thus, displacement is equal to straight line from point A to point B, that is diameter of the circle track is equal to 200 meter is the displacement. इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक एथलीट जो है वो एक राउंड जो है सर्कुलर ट्रैक को उसको कंप्लीट करता है 40 सेकंड्स में, और उस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है। अब हमने ये देखना है कि अगर वो एथलीट 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स ट्रेवल करता है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की या उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, डायमीटर बताया गया है, यहाँ टाइम बताया गया है 40 सेकंड्स। 200 मीटर को ट्रेवल करने में उसको 40 सेकंड्स लगेंगे। डायमीटर है 200 मीटर। इससे हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, और इससे हमें रेडियस का पता लग गया कि वो 100 मीटर है। अब हमें बताया गया है कि वो 40 सेकंड्स में एक राउंड को कंप्लीट करता है, ठीक है, और हमने टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, यानी कि हम पहले इस
2 मिनट्स 20 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो आ जाता है 140 सेकंड्स। अब हमने ये देखना है कि ये जो एथलीट है 140 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है या कितनी डिस्प्लेसमेंट करता है। हमें ये तो पता है कि वो डिस्टेंस 40 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है, एक फुल सर्कल जो है सर्कुलर ट्रैक का, और वो जो 1 राउंड कंप्लीट करता है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होती है, वो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस जितनी होती है। और सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, वो 2 पाई आर के इक्वल टू होता है। यहाँ पर हम आर की वैल्यू को फीड कर देते हैं जो कि 100 है, और हमारा आंसर आ जाता है 200 पाई एम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड हम कैलकुलेट करते हैं फिर 1 सेकंड में, और अब हमने फाइनल कैलकुलेट करना है 140 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, हम फिगर्स को पुट करते हैं। यहाँ पाई का मतलब है 22 डिवाइडेड बाय 7, उसको फीड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 2200 मीटर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर वैसे वो देखने में लगता है कि ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, पर इनका मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है। डिस्टेंस का मीनिंग होता है कि एक टोटल डिस्टेंस जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि एक ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो कितनी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। अब हमने ये बताया गया है इस क्वेश्चन में कि वो 40 सेकंड्स में एक राउंड को कंप्लीट करता है। ठीक है, और हमने ये देखना है कि वो 140 सेकंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट करता है। अब हम देख रहे हैं कि वो 40 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। हम देखेंगे कि वो 140 सेकंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करता है, वो 3.5 राउंड्स कंप्लीट करता है। अब आप देखेंगे कि जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है वो पॉइंट ए पर आ जाता है, दूसरे में भी वो ए पॉइंट पर आ जाएगा, तीसरे राउंड में भी वो ए पॉइंट पर ही आएगा, यानी कि 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद भी वो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगी। यानी कि 120 सेकंड्स को ट्रेवल करने के बाद भी उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, और बाकी के सिर्फ उसके पास 20 सेकंड्स बचते हैं, और 20 सेकंड्स में वो सिर्फ आधा सर्कल पूरा करेगा। यानी कि अगर उसने ए पॉइंट से शुरू किया है तो वो सिर्फ बी पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा, जो कि उसके बिल्कुल ए पॉइंट से बिल्कुल की ऑपोजिट पोजीशन में होगा। आप जानते हैं रेडियस की डायमीटर जो है हमें दिया हुआ है वो है 200 मीटर। तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डायमीटर ऑफ सर्कुलर के बराबर ही होगी, जो कि 200 मीटर होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, जोसेफ जोग्स from one end to A to other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turns around and jogs 10 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and B to C from point A? Answer. You can see from here we have distance covered from point A to B is equal to 300 meter. This is in the figure we have shown point A to B. This is 300 meter. Here you can see displacement is AB. That is the actual displacement is also 300 meter. The time taken is 2 minutes 30 seconds, that is 150 seconds. Average speed is distance covered over time taken, that is it is equal to 2 meter per second. If we calculate average velocity, it is displacement over time taken, the answer is the same. Now if we talk about point when he jogs from point A to C, then distance covered is AB plus BC, that is 300 meter plus 100 meter. That is the distance covered from A to C is not 200 meter but 400 meter, because he has traveled from point A to B and then B to C.
whereas displacement is only AC, that is 300 minus 100, that is 200 meter. Time taken is 2 minutes 30 seconds plus 1 minute which it has taken from going backward from point B to C. 3 minutes 30 seconds is equal to 210 seconds. Here average speed is distance covered over time taken, 400 divided by 210, and this average speed is 1.9 meter per second. Here when we talk about from point A to C, average velocity is displacement over time taken. Here the displacement is only A to C. A to C, the displacement is only 300 minus 100, that is 200 divided by time taken. आंसर इज 0.95 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि एक जोसेफ जो है वो जॉगिंग करता है, वो पॉइंट ए से बी तक जाता है वो स्ट्रेट रोड पर, और वो 300 मीटर कवर करता है 2 मिनट्स और 30 सेकंड्स में, और फिर वो वापस आ जाता है और फिर 1000 मीटर वो जॉगिंग करता है और वो 1 मिनट लेता है. अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जोसेफ की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को पॉइंट बताना है. जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की बात करते हैं तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड हो जाती है 300 मीटर, और उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो भी 300 मीटर की ही आ जाती है. आपका टाइम टेकन जो होता है वो 300 मीटर को कवर करने के लिए आपको 150 सेकंड्स लगे. आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना. एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस कवर्ड को टाइम टेकन से डिवाइड करना होगा और आपका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड. और आप एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं. तो ए से बी तक जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि जोसेफ ने जो जॉगिंग की है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर ही है, तो टाइम टेकन भी सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है. अगर हम पॉइंट ए से सी की बात करें तो पहले जॉगिंग ए से बी पॉइंट तक होती है, फिर बी से सी तक वो वापस आता है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड जो है यहाँ पर 400 मीटर हो गई, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो 300 मीटर माइनस 100 मीटर, यानी कि जो उसने बैक आया है उसी डिस्टेंस में उसको माइनस करना है, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 200 मीटर है. टाइम टेकन जो है वो फर्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पर आप देखेंगे ए टू सी में आने में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो 2 मिनट्स 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट जो 100 मीटर को ट्रेवल करने में लगे हैं, तो आपके पास टोटल टाइम टेकन आ गया 3 मिनट 30 सेकेंड्स, दैट इज 210 सेकेंड्स. और आपको एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है उसी फार्मूले से. आपकी डिस्टेंस कवर्ड है 400 मीटर, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर्ड तो 400 मीटर है, उसको टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ये. अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें ए से सी तक तो ये सिर्फ हमें 200 मीटर हुई है, क्योंकि उसने जोसेफ ने जो जॉगिंग की थी ए से बी तक वो 300 मीटर थी, और वो फिर बैक आ गया था बी से सी तक 100 मीटर, यानी कि उसकी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ 200 मीटर हुई है. वो हम 200 मीटर डिवाइडेड बाय 210 करते हैं तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी आ जाती है. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? Answer. He has gone to school and returned to home. In both the cases, distance traveled is the same. So we assume the distance traveled as d.
In both the cases, while he is going to school or returning from home, time taken is different because the average speed while going to school is 20 kilometer per hour and while returning home it is 30 kilometer per hour. So the time taken will be different in both the cases. So we take the time taken as T1 while going to school, and while returning home, time taken is taken as T2. Average speed is given while going to school 20 km, while returning home 30 km per hour. We apply the formula of average speed, distance over time. We fill the values d over t1 and in this case returning home d over t2, and we find t1 is equal to d over 20, t2 is equal to d over 30. Total distance traveled comes d plus d, 2d, and total time taken t1 and t2. We fill the values and it comes 5d over 60. Now we are to find out the average speed of the entire trip, which is total distance over total time. Total distance is 2d, total time is 5d over 60, and the net result is 24 किलोमीटर पर आवर. इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अब्दुल स्कूल जाता है और जब वह स्कूल जाता है तो वो ड्राइविंग करके जाता है और जाते वक्त उसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर निकलती है, पर जब वो स्कूल से वापस आता है तो रास्ते में ट्रैफिक कम होने के कारण उसकी जो स्पीड है, चाहे वो कार से जाता है या बस से जाता है, तो उसकी स्पीड जो है बढ़कर 30 किलोमीटर पर आवर होती है. रिटर्न में हमने एवरेज स्पीड को काउंट करना है. आप यहाँ देखेंगे कि आपको स्पीड तो दी हुई है जाने की और वापसी की, आपको टाइम का नहीं पता. डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही रहेगा, जाने वाला भी और आने वाला भी, इसलिए हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड को अज्यूम करते हैं डी दोनों तरफ, और टाइम टेकन जो है जाने का अलग होगा क्योंकि वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, वापसी 30 किलोमीटर पर आवर से हो रही है, इसलिए हम टाइम टेकन को अज्यूम करते हैं दोनों केसेस में T1 और T2. एवरेज स्पीड आपको पता है जाते वक्त 20 किलोमीटर पर आवर, आते वक्त 30 किलोमीटर पर आवर. हम एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आप देखेंगे T1 इज इक्वल टू D20, D over 20, T2 इज इक्वल टू D over 30. अब आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस आ जाएगा D प्लस D 2D, और टोटल टाइम टेकन T1 और T2 को प्लस करते हैं आपस में और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आ जाएगा 5D over 60. अब हम एवरेज स्पीड ऑफ ट्रिप को फाइंड आउट करना है, वो होगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस 2D डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5D over 60, एंड द नेट रिजल्ट जो आता है आपके सामने वो 24 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन 4 ये आपके सामने है. A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? Answer. Here the motorboat starts from rest, so its initial velocity will be 0. So initial velocity u is equal to 0 meter per second. Acceleration is given as 3 meter per second square. Time is given as 8 seconds. We are to find out how far the boat travels in 8 seconds. That is, we are to find out the distance traveled by the boat. We know u, a and t. That is, we know initial velocity, acceleration and time. We will use the second equation of motion to find out the distance, which is s is equal to ut plus 1 over 1 over 2 at square. So answer is 96 meter the boat has to travel during this time. So boat travels 96 meter. In this question we will have to take the help of 3 equations of motion which will not be given there in the exam. You will have to remember these equations. अब हम इसको हिंदी में समझते हैं. एक मोटर बोट जो है वो रेस्ट से शुरू हुई है और कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्सेलरेशन कर रही है अब, और उसने 8 सेकंड्स में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हासिल कर ली है.
अब आप बताएंगे कि उसने 8 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। आप जैसे कि आपको क्वेश्चन से पता चला है कि मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम आपको पता है 8 सेकंड्स। आपने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड्स। सो अब आपको इनिशियल वेलोसिटी का पता है, एक्सेलरेशन का पता है, टाइम का पता है। आपने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज एस। आपको 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन को यूज करते हैं और वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 96 मीटर। सो द बोट ट्रेवल्स 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए ड्राइवर of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another car driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? We take first car as car A and the second car as car B. Initial velocity in the case of first car is 52 km per hour. We convert these figures into meter per second by multiplying the figure of kilometer per hour by 5/18, and the net figure will come as meter per second. In the same way, in case of car B, we will calculate the initial velocity which is mentioned in kilometer per hour. We will convert it into meter per second by multiplying it with 5/18. You must have remembered the formula of converting kilometer per hour into meter per second, which is simple, that you have to multiply the relevant figure by 5/18. In the case of car A, that is the first car, the car stops in 5 seconds, and in the case of second car, the car stops in 10 seconds. So final velocity in both the cases, in case of car A and car B, is 0 meter per second. In the case of first car, the time taken for stopping the car is 5 seconds, and in the second case it is 10 seconds. So in case of first car A, distance traveled before coming to rest is area of triangle C O and D, that is base 1/2 multiplied by base into height. Base is 5 because it has taken 5 seconds to stop, and the height is 14.44 meter per second, which is the initial velocity. Multiply करते हैं and the net result is before you 36.1 meter. In the case of car B, distance traveled before coming to rest is equal to area of triangle E O and F. You apply the formula of 1/2 multiplied by base into height. It is base is 10 and the height is 0.833, and the answer is 4.16 meter. So the car traveled farther in the case of car 1, यानी कि कार A traveled farther when the brakes were applied. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक कार का ड्राइवर है, वो कार को चला रहा है 52 किलोमीटर पर आवर से, और जब उसमें ब्रेक्स लगाई जाती है तो 5 सेकंड्स के अंदर वो कार रुक जाती है। दूसरी कार जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जब उसको ब्रेक लगाते हैं तो वो 10 सेकंड्स में स्टॉप होती है। आपने एक ग्राफ बनाना है और उसमें स्पीड टाइम ग्राफ शो करना है, और दोनों कारों की आपने स्पीड टाइम ग्राफ उसी ग्राफ में शो करने हैं। आपने ये भी बताना है कि कौन सी कार जो है वो ब्रेक लगाने के बाद में कितनी दूर ज्यादा गई, कौन सी कार दोनों कारों में से ज्यादा दूर गई। जब आप फर्स्ट कार की बात करते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो कार ट्रेवल कर रही स्पीड से वो है 52 किलोमीटर पर आवर, दूसरी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब हमने, क्योंकि सेकंड्स में बात हो रही है, टाइम जो है हमें सेकंड्स में दिया हुआ है,
इसलिए हम ये जो फिगर्स हैं इनिशियल वेलोसिटी वाली किलोमीटर पर आवर की, इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको रेलिवेंट फिगर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका फार्मूला आपको पिछली वीडियो, इसी वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इनिशियल वेलोसिटी विच इज मेंशन्ड इन किलोमीटर पर आवर, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में आ जाती है। पहली कार 5 सेकंड्स में रुकी, दूसरी कार 10 सेकंड्स में रुकी। दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो है, क्योंकि कार दोनों स्टॉप हो गई हैं, फाइनल वेलोसिटी दोनों केसेस में 0 है। पहली कार को रुकने में 5 सेकंड लगे, दूसरी को 10 सेकंड लगे। अब हमने पहली कार की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं को देखना है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की रुकने के समय उसने, तो उसका जो एरिया होगा वो COD होगा। ये आपको C है, ये O है, ये D है। अब इस COD का एरिया जो है, इसका फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको अप्लाई करते हैं तो आपके सामने आंसर आ जाता है 36.1 मीटर। और इन केस ऑफ सेकंड कार आपको डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो होगी EOF जो है ट्रायंगल, उसका एरिया होगा, और उसका एरिया भी इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने आंसर आ जाता है 4.16 मीटर। तो आप देखते हैं कि कार ए जो है, जो पहले वाली कार है, वो ज्यादा दूर ट्रेवल करती है, क्योंकि इसने 36.1 मीटर ट्रेवल किया है, जबकि दूसरी कार ने 4.16 ट्रेवल किया है। सो पहली कार जो है वो ज्यादा दूरी तय करती है जब हम उसको ब्रेक लगाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर कोर्स, प्लीज स्पेयर सम टाइम to give a star rating to our course. Thanks.